forward. Honorable Advisor Mohammad Khan, Larry Saab for Minister for Labour and Manpower Department, the worthy guests including the Secretary Finance Pasand Buledi Saab, Secretary Social Welfare Rauf Saab, and DG Industries Saeed Sarparra Saab, and our Additional Secretary Abdul Razak Bhatti Saab, along with all the labor unions, labor federations, and worthy guests, our directors, Secretary Worker Welfare Board, and Hamza Saab, and all the other participants and who are present here. I welcome you all in this August gathering for observing the Labor Day. Thank you very much for joining us on this special evening, where we are actually acknowledging the laborers around us whose work and whose hard work and diligence makes us to go and do the bigger tasks which actually bring prosperity and development for the province of Balochistan. Here I would like to mention that Labour and Manpower Department's footing is on 6 independent institutions or wings, which includes the BESI, Worker Welfare Board, Directorate of Labour and Manpower, Balochistan, TEVTA, and the social institutions. What basically we are doing in Weights and Measure institution or the wing of the Labour and Manpower, we actually want that all the commodities which are for the consumer need and usage should be according to the proper calibration and the measures. Similarly, in BESI, we are trying to provide the medical aid to the people by providing them medical facilities and registration. Here I would like to mention that the registration process is not up to the mark as it should be in Balochistan, because only those workers are benefited from the social security who are actually being registered in EUBI or social security. Unfortunately, any labor who is not registered with EUBI or Social Security is not in the list of getting the medical benefits. So this is an issue, and like the problems which actually occurred in the much recent incident where certain laborers were slaughtered, and we were not in a position to help them, was also because of this basic reason that they were not registered. So this registration is one of the biggest problems which I have come across in the Labour Department, that unless and until these laborers are not registered properly, and that registration can only take place with the help of the employer. If the employer is not registering them, it would be very difficult for us or for any institution, both at provincial or federal level, to give them any sort of medicine benefit or any sort of compensation or any sort of death grant. So it is a request and it is a message for which I want to give from the in lieu of this Labour Day, that every employer must register their laborers. For this, we have also devised a pro forma and we have circulated in the newspapers for every owner with the consultation of the Chief Secretary, that any owner who is not going to register their laborers would going to face severe sort of penalties, for which we have already floated this in the newspaper. Similarly, the other institutions like Worker Welfare Board has its own paradigm, where we are facilitating the workers with the not only the health facilities but also education facilities. There are barracks for the laborers, as well as there are flats which are going
soon going through the allotment procedure, which unfortunately for such a long period have not been allotted due to the reason that there was a problem in the policy shift. Sometimes before it was that these flats will be given on basis of the rental basis, but now the policy has been changed from the worker welfare funds, and they have asked us, and they have sent the acknowledgement in terms of allocating these flats with the on ownership basis. So it is another good news that those more than 3,000 flats which have not been yet allotted, and they are in a very good condition, but because of just this simple thing that whether we should give them on rental or ownership basis was lingering on for such a long time, and now that policy has been finalized, so soon we are going to allot those flats in terms of ownership basis. Similarly, we have 11 schools, 11 schools and 2 hospitals in the Worker Welfare Board. These schools are also meant for giving education to the children of the laborers, and here we are also going to provide the uniform and books. This was previously in the entire this was the basic purpose of providing uniform and books, but unfortunately again these budgets used to be lapsed for such a long time, and for last 5 years uniform and books were not given to the children of the workers. It was very unfortunate. The reason being because there is a trend which I have found in this department or maybe in others department, that whenever there any activity going to take place, some sort of negative feedback starts floating around, and people start raising unwanted queries and questions which actually have no grounds in the reality. Similarly, there is some problem lying in the hospitals of BESI, which is one is in Hub and in Quetta, and their situation is not up to the mark, as at this time we cannot provide them good dispensary and good medical services because of the reason that the management was not taking due care in terms of its responsibilities. There are few options that we are going to think upon it, and we are also working on it. One is either we have to give these hospitals to PPHI, where they are actually running other hospitals and BHQs which are in a good condition. Other option is that there should be a committee arranged which should consist of members of the Chamber of Commerce along with the other stakeholders who should actually run the affairs of the hospital. Similarly, in DG Labour Office, we are so much lucky this year that we have passed 7 laws, in which 5 have been approved by the Cabinet and the Standing Committee, which includes the Bonded Labour Act, the Minimum Wages Act, the Minimum Wages Act, Maternity Benefit Act, along with the Factories and Establishment Act. These all have been repealed, and most importantly the TEVTA Act, which has been so many times, I should say, that has not actually been approved, or it has not been finalized due to XYZ reasons. But now, after going through the Legislative Committee, we have finalized the TEVTA Act, which has been vetted by the Law Department, and soon there would be a consultative meeting on TEVTA, and our worthy advisor is going to chair that committee in the presence of the Chief Secretary, along with the other important secretaries like Industries, Finance, Social Welfare, NAVTEC, etc.
and there are certain very important decisions that we are going to take. For example, we want to give boost to the TVET institution, and in these TVET institutions, our drive is that these institutes who are actually giving now a very obsolete training. For example, we are not actually giving training on the CPAC oriented training designs, and our training is lacking the NQEF system along with the CBT level training. So we are trying to enhance this so that these trainings should be based on NVQF level and CBT level, and these laborers or workers can get job in outside the Pakistan as well, not only at the national level but at the international level, because there is a lot of demand of skilled labor workforce. And our vision in the labor and manpower department is that we have to increase the skilled workforce by providing them laborers and the workers a decent working environment where they would not only be having or enjoying the social security mechanisms, but also the TVET sector would also be strengthened. So in this TVET institution, the TEFTA could not, the TEFTA had also a lot of problems here, because TEFTA could not be streamlined. Reason being, the work of TEFTA is incorporated in the action plan of other departments as well. For example, Industries department have also number of training institutes which are providing skilled workforce. Similarly, the technical education also has, I think, about 20 centers. Similarly, we in the labor and manpower department, we have 22 technical centers, both VTC and TTC centers, and their work is also similar to them as well. So social welfare also have such centers as well. I think it's about 23, something like that. So we need to bring them under one umbrella, because the government does not have enough budget for the jobs, for government jobs. गवर्नर साहब के पास भेजा जा रहा है ताकि उनको तस्दीक करके नाफिज़ुल अमल किया जा सके। बलूचिस्तान मिनिमम वेजेस बिल 2021 ये भी सूबाई असम्बली से पास हो चुका है, मंजूर हो चुका है। सर 60 साल बाद इस ला में हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो था 1936 का था, उसमें 85 साल बाद हम ये अमेंडमेंट्स करने जा रहे थे, जो वेस्ट पाकिस्तान के दौर के लॉज हैं। बलूचिस्तान इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स बिल 2021 ये ला भी स्टैंडिंग कमेटी के पास है, और सूबाई असम्बली ने स्टैंडिंग कमेटी को वो कर दिया, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये नाफिज़ुल अमल होगा। बलूचिस्तान शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट बिल 2021 ये सूबाई काबीना से अप्रूव होकर स्टैंडिंग कमेटी के पास है। सूबाई असम्बली ने स्टैंडिंग कमेटी को भिजवा दिए, और मज़ीद गौर गौस के बाद इंशाल्लाह आने वाले इजलास में ये भी वहाँ से मंजूर हो जाएगा। इस कानून में 52 साल बाद हम अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। सर बलूचिस्तान वर्कर्स कॉम्पनसेशन बिल, ये इस कानून जो 1923 में लागू था, और 98 साल के बाद सर ये कॉम्पनसेशन का एक्ट दोबारा रिवाइज़ हो रहा है। 98 साल के बाद ये 1923 का कानून है। इसमें सर हमने इसको सूबाई असम्बली में सूबाई काबीना के सामने पेश किया। उसमें वज़ीर आला साहब की हिदायत थी कि आप इसमें कुली कचहरीज़ करें और लोगों से राय लें, तमाम स्टेक होल्डर से। इस सिलसिले में हमने कोयटा में, गवादर में और हब में लोगों की राय ली है, और जितने भी बाकी हमारे लोरलाई और उस एरिया के लोग हैं उनको भी कोयटा बुलाकर उनसे उनकी राय शामिल करके वो ला दोबारा हमने मंजूर किया है। और सूबाई कोलिशन गवर्नमेंट के जो पार्टनर्स हैं उन सब के तमाम कोलिशन लीडर्स से भी मुशावरत कर चुके हैं, और दोबारा इंशाल्लाह इसको काबीना भेजकर असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। बलूचिस्तान होम बेस्ड वर्कर्स बिल 2021 सर ये हमारा एक नया कानून है, जिसको हम लॉ डिपार्टमेंट भेज चुके हैं, जो वेटिंग प्रोसेस में, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये हम कैबिनेट को पेश कर देंगे। जी, ये होम बेस्ड वर्कर्स चूँकि ये वो कवानीन हैं जो घर में काम करने वाली ख़वातीन हैं, और उनके लिए इंटरनेशनल लेवल पर
और बाकी सूबों ने कुछ इंट्रोड्यूस किए हैं और इंशाल्लाह उससे बेहतर लॉज लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तमाम लोग जो अपने घरों में बैठकर काम करते हैं उनकी सहूलत के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी वेजेस के लिए, उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए कानून ज़ेर गौर है। बलूचिस्तान डोमेस्टिक वर्कर्स बिल 2021 ये एक नया कानून है। ये वो जो लोग घरों में खिदमत करते हैं, जो आया, मासी और इस तरह के वो जो मेड्स हैं, वो ये डोमेस्टिक वर्कर्स का वो है। होम बेस्ड वर्कर्स वो मज़दूर लोग हैं जो घरों में बैठ के कशीदा कारी करके अपना ओनर के ज़रिए रोज़गार कमाती हैं, वो होम बेस्ड वर्कर्स हैं। डोमेस्टिक वर्कर्स वो हैं जो बच्चे घर में काम करते हैं, जो आया, मासी या मेड्स काम करते हैं, ये डोमेस्टिक वर्कर्स उनको कहते हैं। तो उनके लिए भी हम कानून साजी इंशाल्लाह कर रहे हैं, लॉ डिपार्टमेंट को भिजवा चुके हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह ये मंजूर होने के बाद सूबाई काबीना से मंजूरी के बाद हम असम्बली से इसको नाफिजुल अमल कराएंगे। बलूचिस्तान इंडस्ट्री रिलेशन एक्ट 2010 था, 18वीं तरमीम के बाद इसमें तरमीम हो चुकी थी। हमारे दोस्तों की ख्वाहिश थी कि इसमें मज़ीद तरमीम की जाए। उसमें हमने मुशावरती इजलास करके लेबर लीडर साहिबान के साथ दोबारा हमने लॉ डिपार्टमेंट को भिजवाया है और वहाँ से मंजूरी के बाद इंशाल्लाह सब काबीना और असम्बली से पास करा के इनके जो देरीना मुतालबात है उसको पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ बिल 2021 ये सर बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा लॉ था, जिसमें हम माइंस डिपार्टमेंट को भी कवर कर रहे थे, बाकी जो लेबर्स को भी कवर कर रहे थे। जो हेल्थ एंड सेफ्टी के इस वक्त पूरे सूबे में कोई कानून नहीं है, लेकिन ये कानून चूँकि असम्बली सूबाई काबीना ने डेफर किया, मेरे ख्याल में वहाँ फ़ैसला ये था कि इसको हम पास करते हैं। एक सजेशन ये थी कि पॉलिसी ले आएँ, लेकिन मिनट्स में ये रिफ्लेक्ट हुआ है कि जी आप इसको डेफर करें। तो इसको सर हमारे मिनिस्टर साहब आपसे गुजारिश है कि सीएम साहब से दोबारा उठाकर ताकि ये डेफरमेंट ख़त्म हो जाए। ये बहुत ज़रूरी कानून है। इसमें ज़्यादातर माइंस के लोग इसमें सर उनकी सेफ्टी इन्वॉल्व है और बाकी हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स की भी है और बाकी इदारों की भी यकीनन होगी। जी बलूचिस्तान टेफ्टा के वाले से बताऊं कि ये सूबाई सतह पर सबसे अपेक्स बॉडी है टिबेट इंस्टीट्यूशन के वाले से। ये रेगुलेट करती है, प्रमोट और फाइनेंस करती है टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को। ये नए कानून साजी और लॉज बनाने के लिए भी जिम्मेदारियां निभाती है और टिबेट इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उनकी मॉनिटरिंग का और इवेल्यूएशन की जिम्मेदारी भी टेफ्टा की जिम्मेदारी में है। स्ट्रेंथनिंग एंड अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड भी इनकी जिम्मेदारी है। इस्टेब्लिशिंग एन एम्प्लॉयमेंट सेल फॉर द ट्रेन मैन पावर। नेक्स्ट कीजिए। इससे पहले हमारे 3-4 ऐसे काम थे कि जो मुख्तलिफ उसमें काम कर रहे थे। उसमें हमारी SDP, बी टेफ्टा, TTC खारान प्रोजेक्ट पर मुख्तलिफ अंदाज में काम कर रही थी। इन तमाम को हमने यकजा करके इसमें कोशिश की कि ताकि जो रिसोर्सेज है उसका बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सके और इसमें हमने 7 महीनों के अंदर सर 36 मिलियन रुपीस उसकी सेविंग की है कि जो एक वो है PMU कॉस्ट है उसको हमने बचाया है और तमाम डिपार्टमेंट्स मिल के काम कर रहे हैं जो मज़दूरों की ज़्यादा अच्छे अंदाज में बेहतर खिदमत में ये पैसे इस्तेमाल किए जा सकें। बी टेफ्टा 2011 के बाद कुछ अरसे डॉर्मेंट रहा और बाद में इसकी 2019 और उसके बाद 2020 में एक्ट में तरमीम पेश की गई और जो तकरीबन अभी फाइनल स्टेज पे हैं। इससे पहले सर्विस रूल मौजूद नहीं थे। सर्विस रूल पर भी काम तेज़ी से जारी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये लॉ डिपार्टमेंट से वेट होकर ये नाफिजुल अमल होंगे। टिबेट इंस्टीट्यूशंस में पहले फुकदान था कि बाहमी राब्तों का, जिसकी वजह से भी बलूचिस्तान में स्टीयरिंग कमेटी को पेश की गई है और जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट हो गए हैं और उनकी 2 मीटिंग्स भी इस वक्त तक हो चुकी हैं। पहले एनुअल प्लान और टारगेट्स नहीं थे और इस वक्त एनुअल प्लान और टारगेट भी अप्रूव की जा चुकी हैं स्टीयरिंग कमेटी से। टिबेट इंटरवेंशंस पहले मदरसा में नहीं थे, अभी यूनिसेफ के ताउन से और बी टेफ्टा की कोलैबोरेशन से मिलकर मदरसास को भी टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए डिपार्टमेंट कोशा है। नीड असेसमेंट पहले नहीं थी और इस हवाले से भी अभी 25 पब्लिक सेक्टर टिबेट इंस्टीट्यूशंस और अलाइड डिपार्टमेंट्स ने ये काम अपग्रेडेशन का मुकम्मल कर लिया और इसकी नीड असेसमेंट जारी है। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, जो होटल्स में जो लोग काम करते हैं उनके लिए पहले ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं था। इस वक्त सूबे ने 500 नौजवानों के लिए हाशू फाउंडेशन के साथ मिलकर
पीसी होटल कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी और गवादर में उनकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया जा चुका है और इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द ये लोग वहाँ से ट्रेनिंग हासिल करके अपने लिए रोज़गार के मौके पैदा करेंगे, न सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी। डायरेक्टरेट ऑफ मैन पावर ट्रेनिंग के बारे में मैं बताऊँ जी, इनकी बुनियादी ज़रूरत वो है कि वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं नौजवान ख़वातीन और बच्चे और बच्चियों को। वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से रहनुमाई करती हैं। करियर काउंसलिंग भी इनकी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। ये एक्रेडिटेशन और सर्टिफिकेशन अवार्ड करते हैं जो लोग यहाँ से पास आउट होते हैं। ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड उनकी सर्टिफिकेशन का ज़िम्मेदार इदारा है और उनको सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोवाइड करती है। कैपेसिटी बिल्डिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिसशिप ऑर्डिनेंस 2018 जो अमेंडमेंट बाद में की गई है, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो एक्ट है टेक्निकल एजुकेशन का बोर्ड बनाना, वो भी अपने आखिरी मराइल में है। महकमे ने सर 2020 में जो पास आउट मेल स्टूडेंट्स थे 1118 थी और ख़वातीन जो पास आउट फ़ीमेल स्टूडेंट्स 2020 में हमारे पास थी वुमेन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर से 473। और कामयाब जवान प्रोग्राम जो नेफ्टेक की से मदद से और ताउन से हमने लॉन्च किया था, उसमें 3500 नौजवानों के मुख्तलिफ़ ट्रेड्स में पहले 6 माह में तरबियत दी जा चुकी है। नेक्स्ट बलूचिस्तान एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन एक हमारा बहुत ही अहम इदारा है जो 1999 में इसका क़याम अमल में लाया गया सूबे बलूचिस्तान में, और ये 1965 के कानून के मुताबिक ये काम करता है। बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ इनमें हैं कि जो सिक्योर्ड वर्कर्स हैं और उनकी जो फैमिलीज़ हैं, डिपेंडेंट मेंबर्स हैं, उनको मेडिकल सर्विसेज, माली मुआवनत, रीइंबर्समेंट, कैश बेनिफिट्स, सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी, एम्प्लॉयमेंट इंजरी और डेथ के जो बेनिफिट्स हैं या ग्रांट्स हैं वो दी जाती हैं। इस वक्त जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने कलेक्ट किया है हमारे पास 212.61 मिलियन। पेशेंट इनरोल्ड इन OPD ऑफ सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल 51,642। इंडोर पेशेंट रेफर टू द पैनल हॉस्पिटल 22,813। फ्री मेडिकल कैंप्स इन्होंने लगाई क्वेटा और हब में 2020 में, और जिसमें सैकड़ों मरीज़ों का मुफ्त इलाज किया गया। रजिस्टर्ड इस्टेब्लिशमेंट हमारे पास मौजूदा 301 हैं और 26 नए रजिस्टर किए गए हैं, और इनकी बदौलत, इनकी जो टीम और शुजा साहब की इसकी बदौलत 0.2 मिलियन पर मंथ इन्होंने नई एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट की है। रजिस्टर्ड वर्कर्स एग्जिस्टिंग हमारे पास जो हैं 15,410 और न्यू 200 हैं। प्रपोज्ड अमेंडमेंट की गई है सर इनके लॉ में, चूँकि ये कानून 1965 का है, वो अमेंडमेंट्स भी प्रोसेस में और इंशाल्लाह बहुत जल्द नाफिज़ुल अमल होंगी। इसके बाद हमारा वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का इदारा है। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बेसिकली हमारे मुख्तलिफ उसमें हाउसिंग, एजुकेशन और वेलफेयर के काम अंजाम देती है, और इसमें हमारे पास जो हाउसिंग में है सर 12 कॉलोनीज़ हैं और 2411 क्वार्टर्स हैं, 253 बैरक्स हैं और नए 402 फ्लैट्स हैं जो अभी बहुत जल्द इंशाल्लाह हम अलॉटमेंट के प्रोसेस में जाने वाले हैं। एजुकेशन के हवाले से सर हमारे 13 स्कूल्स हैं जिसमें 9 मेल और 4 फीमेल हैं। मैडम ने चूँकि अपनी स्पीच में 12 कहा था, वो जोब का हमारा स्कूल अभी इंशाल्लाह रिसेंटली फंक्शन होने वाला है, तो उसको हमने उनको इसमें इनकॉर्पोरेट किया था। स्टूडेंट्स हमारे पास इस वक्त सर मेल और फीमेल 4069 हैं, और इस वक्त डेथ ग्रांट सर इस वक्त जो वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने अपने जो डिसीज्ड वर्कर्स हैं उनको जो दिए हैं 1,75,00,000 उन्होंने वर्कर्स को ये कंपनसेशन की अमाउंट वर्कर्स वेलफेयर फंड ने डिसबर्स किया है। मैरिज ग्रांट की मद में सर 60 केसेस में 60 लाख प्रोवाइड की जा चुकी है, और स्कॉलरशिप के मद में 43,20,000 स्कॉलरशिप जो उनके बच्चों को जो मजदूर हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और कॉलेजेस में प्रोवाइड की जा चुकी हैं। हमारे सर PSDP के हवाले से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के विंग्स में मौजूद हैं। चाइल्ड लेबर सर्वे के लिए यूनिसेफ की ताउन से एक स्कीम अप्रूव की गई थी, और जिसमें मुख्तलिफ और नागज़ूर वजूहात की बिना पर वो स्टार्ट नहीं हो सका था। बहरहाल इस वक्त सर ये पोजीशन है कि वो MOU बलूचिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में वो MOU होना बाकी है,
जब वो MOU साइन होगा तो यकीनन इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट का इनेकाद किया जाएगा। Rehabilitation and renovation and upgradation of existing building of TTC hub to the center of excellence, 50 million 50 million वो किए गए थे और 30 जून तक इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिमेनिंग सिविल वर्क ऑफ बिल्डिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर सोबतपुर, ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है सर और हमें हैंड ओवर इनकी होने जा रही है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बी टेफ्टा कम्प्लेक्स, इसके लिए 200 मिलियन रखे गए थे सर, PDWP ने अप्रूव किया। लैंड के अलॉटमेंट का इशू है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सेक्रेटरी लेबर सायरता साहिबा, DG साहब, देगर मोअज़्ज़िज़ीन, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन हमें लेबर डेज़ के हवाले से जो आप यहाँ पे मुनक़िद करते हैं 1 मई, अगर इसको देखा जाए हकीकत में लेबर्स के हवाले से, मैंने कहा कि इंसान सुबह निकलता है शाम तक इतना कमा कर लेकर आऊँ कि अपने बच्चों का जो है पेट भर दूँ। आज के हवाले से क्योंकि ये 1 साल गुज़र चुका है कि कोविड-19 की वजह से जो हमारे डेली वेजेस के जो मज़दूर तबका बहुत मुतासर हुआ है। यहाँ पे हकीकत में इस हवाले से उनके लिए कुछ नहीं किया गया है, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट और हमारे CM साहब का एक विज़न है, इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि कहीं पे अगर कोई छोटा बच्चा हो या उसको कोई भी क्या नहीं हो, तो इस हवाले से लेबर के हवाले से हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उसके भी नताइज आप लोगों को मिलेंगे। इसके साथ क्योंकि मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे शहर में जो है लोग डेली पे, हमारे यहाँ जैसे किसान अक्सर वहीं पे जो ज़मीनों पे काम करते हैं, हकीकत में सुबह से यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको 40 सेंटीग्रेड मिलेगा या 38 सेंटीग्रेड पे, यहाँ पे तो इतना वो गर्मी नहीं है। हमारे नसीराबाद में आपको बताऊं कि 51, 52 पे भी लोग वहीं पे पेंदरी के काम करते हैं। तो इस हवाले से इनके लिए हकीकत है लेबर्स के हवाले से अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। ये जो आपके दिहाड़ी के हवाले से अगर 1000 मिल जाए, उसको 1500 मिल जाए, इसमें उसको कुछ क्या नहीं है। तो इसके अलावा जैसे हमारे DG साहब ने भी आप लोगों को बताया कि बहुत से लाज थे जो हमारे पेंडिंग थे, जो कुछ हमने असेंबली से पास भी किए हैं और इंशाल्लाह और कुछ दिनों में दूसरे भी हमारे जो पास होंगे। और इसके साथ साथ आपको पता है कि साने गडानी में 2016 में पेश आया था, आज उनको 5 साल गुजर गए थे, लेकिन उनके ऊपर कोई भी इक़दाम नहीं हो रहे थे। ये भी क्रेडिट हमारे CM साहब मौजूदा गवर्नमेंट को जाता है कि जितने भी मिले, लेकिन उनके लिए वो कुछ ही रकम कुछ भी नहीं था, लेकिन कम अज़ कम कुछ न कुछ तो उनके वो कहता है कि रोज़ी का एक ज़रिया बन गया। इंसान का तो कोई कीमत नहीं है, इंसान को आप बिल्कुल लाखों रुपए भी दे देंगे, उसका कोई कीमत नहीं है। लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट इस हवाले से बहुत से लाज बना रहे हैं जिसमें आपके मज़दूर को एक तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और उसके जो बहुत से क्या चीज़ें हैं जो कमी पेशी हैं वो पूरा हो जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पे बहुत से जैसे DG साहब ने, मैडम साहिबा ने बताया कि बहुत से जो क्वार्टर्स हैं जो मज़दूरों के लिए बने हैं, इंशाल्लाह ताला हम जल्द से जल्द उनको भी इनके हवाले कर देंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा बहुत से चीज़ें हैं इस मज़दूर के हवाले से, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको एक बेहतरी की तरफ लेके जाएं और एक ये डिपार्टमेंट को एक अच्छा सा अच्छा क्या बनाएंगे। तो क्योंकि इफ्तारी का भी टाइम हो रहा है और भी बातें फिर भी करने हैं आप लोगों से, तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।